Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope you all are doing good. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Today inshallah we will be covering some of the part of the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basically I'm talking about unit 13 of class 5th, which is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam part 2nd. Now what happens? The situation of Muslims in Mecca was getting really difficult. Different people of the pagans, the disbelievers, they were approaching different people to throw out Muslim community from their people. वो चाहते थे कि हम अपने यहाँ से इन लोगों को निकाल करके बाहर करते हैं. Now what happened? Quraysh, the biggest enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the full tribe, the tribe which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam belonged, जिस tribe से Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam थे, उसी tribe को अब मुसलमानों से ज्यादा नफरत होने लग गई और वो अप्रोच करने लग जाते हैं किसको? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को, अबू तालिब को. Now some of the Quraysh chiefs, which include Utbah, one is Utbah, Abu Jahl, they went to Abu Talib and they informed, go and convince your nephew, आप जाकर के अपने भतीजे को सर कन्विंस करिए to leave this religion, ये religion छोड़ दे तो अच्छा है, हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा. Now Abu Talib sent for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and told him what people have said. अब लोगों ने इस तरीके से जब कहा तो अबू तालिब भी पहुंचते हैं उनके पास में. My nephew, I have become old. It is not possible for me to face the attack of the Quraysh. Do not put me in such trouble. It is beyond my power. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam answered, my uncle, by Allah, if they put sun in my right hand and if they put moon in my left, so that I would abandon this matter, I would not abandon it until Allah gives me victory or I die while calling on it. जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हालात सख्त हो गए, अबू तालिब उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे रिलीजन को क्यों अपना रहे हैं जिसकी वजह से कुरैश के अंदर लड़ाई हो रही है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा. तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे हाथ में, सीधे हाथ में सूरज रख दें और दूसरे हाथ में चांद रख दें, यानी इतनी दौलत मुझे दें, और उसके बाद ये कहें कि मैं इस पैगाम को पहुंचाना छोड़ दूं, तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा इस पैगाम को पहुंचाना, यहां तक के दो चीजें हो जाए, या तो अल्लाह ताला मुझे इनके ऊपर फतह दे दे, मैं जीत जाऊं इनसे और इनको इस्लाम में दाखिल करा दूं, या फिर मैं इसी पर बुलाते बुलाते मुझे मौत आ जाए. Subhanallah. This is called attitude. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam का जो अखलाक था, एटीट्यूड था, वो ये था. सबसे ऊंचा काम जिसके लिए वो दुनिया में आए थे, he was not ready to give that up. उस काम को वो नहीं छोड़ना चाहते थे, and that was to call people to Allah. अगर इस काम में नहीं हो, Abu Talib was a very important person in Makkah. He commanded the highest respect among the chieftains of the Makkah. He was the chief of Banu Hashim tribe. Who was Abu Talib? Abu Talib was the chief of Banu Hashim tribe. The enemy of the Prophet ﷺ were elected to attack the Prophet ﷺ because of the presence of Abu Talib. Abu Talib की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक होने से रुक जाते थे, कुरैश नहीं कर पाते थे. क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये बनु हाशिम के सरदार हैं, हम इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते. Prophet sallallahu alaihi wasallam got up. His eyes were filled with tear, moved by what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. Abu Talib said to him, I will not withdraw my support. I will not hand you over to your enemies while it is within my power. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, ठीक है, अब उनकी आंखों में आंसू आ गए. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, क्या कहा? मैं अपनी मदद तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता हूं और मैं इन जालिमों के हाथ में तुम्हें नहीं दे सकता हूं जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं ताकत में हूं. This is the support
that Islam got from Abu Talib. Abu Talib इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा था. That's the wonderful teaching of Islam. अब क्या हुआ? अब हालात क्योंकि मुश्किल हो गए, यहां रहना लोगों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा था. तो व्हाट हैपेंड? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज पीपल टू माइग्रेट टू एबिसिनिया, इथोपिया. उन्होंने कहा आप ऐसा है कि यहां पर तो रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा करते हैं कुछ सहाबी जो है वो सारे के सारे एबिसिनिया चले जाइए, क्योंकि हालात जब मुश्किल हो जाएं तो इस्लाम का उसूल ये है कि अपनी जगह छोड़ दें, दूसरी जगह चले जाएं. लड़ने झगड़ने का क्या फायदा, अपनी जान देने से कोई फायदा नहीं है. उसूली बात क्या है? आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है. यू हैव टू कन्वे द मैसेज ऑफ अल्लाह टू द पीपल. इफ यू कैन नॉट गिव दैट दावा, इफ यू कैन नॉट propagate your religion, it is better to leave this place and go and settle somewhere else. So what he decided to send people to Abyssinia. Abyssinia जो था वहां जाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस किया. All the efforts of the pagans of the Makkah to stop the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam failed bitterly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam continued preaching Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and the Quraysh deeply felt the power and the strength of the message. उनको लगता था कि ये पैगाम वाकई में सच्चा है. Now Quraysh reacted violently. अब उन्होंने सख्त हालातों से उन्होंने सोचा नुकसान पहुंचाना इनको. They tried to stop Prophet sallallahu alaihi wasallam from entering the Kaaba. अब रास्ते में खड़े हो गए काबे के, आप काबा एंटर नहीं करेंगे. They set their louds to raise a hue and cry against him. अब उन्होंने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी और लोगों में बताना शुरू कर दिया कि चलो इनके खिलाफ अब खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ. आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिए. They call Muslims bad name. अब क्या किया? मुसलमानों को अजीब अजीब नामों से पुकारना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी. नाउज़ुबिल्लाह. They made their movement impossible. अब उन्होंने कहा कि इनका मूवमेंट खत्म ही कर देंगे, ऐसा करेंगे. They did not allow them to meet people from outside Makkah. कोई मक्का से बाहर से आता था, आप नहीं मिलेंगे इनसे. They began to prosecute poor and the weak more intensely. गरीब लोग जो मिस्कीन थे, कमजोर थे, उनको दबाते थे और कुचलते थे उनके साथ में. Life became very hard for the believers. हालात यहाँ पर अब रहना बहुत मुश्किल हो गए. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw this bad situation, he suggested Muslim to leave Abyssinia, whose Christian king Najash was a just ruler. अब now Prophet sallallahu alaihi wasallam he advised people कि अब आप लोग क्या करिए, Abyssinia यानी इथोपिया चले जाइए. Why? Because there lived a king who was just. इंसाफ पसंद एक राजा रहता था. His name was Najashi. Negus. Najashi. और वो एक क्रिश्चियन था. 3 चीजें बताई उसके बारे में. वो इथोपिया में रहता था, वो ईसाई था और वो इंसाफ पसंद था. उसका नाम नजाशी था, नेजस. Now 16 men, 4 women were the first Muslim immigrant to Abyssinia. How many people migrated? 16 men and 4 women. 20 लोग, 20 लोगों का डेलीगेशन यहां से एबिसिनिया जाता है. उनमें से 16 लोग जो हैं वो मर्द हैं और 4 जो हैं उसमें औरतें भी हैं. Among them was Uthman ibn Affan, who was later became the 3rd caliph, and his wife Ruqayya, the daughter of Prophet sallallahu alaihi wasallam. और इन 20 लोगों में से कौन? 2 गोल्डन लोग थे. उस्मान रज़ियल्लाहु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो कि इस्लाम के 30 खलीफा बाद में बनते हैं. और उनकी बेटी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका निकाह हुआ बाद में, तो वो भी साथ में थी. अल्लाहु अकबर. The Quraysh were very annoyed when they saw that the Muslims were safe in Abyssinia. So they decided to send a delegation to Najash to request him to send Muslims back home. Amr bin al-As and Abdullah ibn Rabi'a were chosen for the task. They took them expensive gifts to Najash and his general. अब यहाँ मक्का के लोगों को चल गया कि 20 लोग वहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा वहां जाएंगे, हम इनको वहां पे भी नहीं छोड़ेंगे. 2 लोगों को अपॉइंट किया, अमर बिन अलास और अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया. अमर बिन अलास थे और अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया.
तो ये दो लोगों को बताया, तुम जाकर के उनको जरा कन्विंस करो कि ये मुसलमानों को यहां से निकाल दें। और उन्होंने क्या किया, चालाकी ये करी कि हम महंगी महंगी गिफ्ट ले आते हैं इनके लिए, पैसे लेकर के जाएंगे तो ये हमारी बातों में आ जाएंगे और इनको यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। Amar present everyone of the generals who attended the Najas court with a precious gift. He said to them, some of our foolish men were arrived in your land. They have rebelled against the religion. They have come with a new faith. We have come as a representative of our leaders to request the king to return these people to us. When we make this request to the king, we hope you will advise him to grant it without taking the trouble of calling them and speaking to them. Now what happened? इतनी देर में ये पहुंचते, ये लोग अपनी सवारियों से तेज पहले पहुंच जाते कोर्ट में और जाकर उनको बताते हैं कुछ हमारे बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है और हमारे भगोड़े लोग हैं, ये भाग करके आए हुए हैं वहां से, तो इन लोगों को हमें दे दिया। अच्छा, पहले दौर के अंदर क्या होता था, कबीले में कोई भी इंसान अपने कबीले का धर्म नहीं छोड़ता था। अगर उसने छोड़ दिया तो वो बागी हो जाता, बगावत करने वाला हो जाता। उसको अगर पैगाम किसी बराबर वाले राजा को भिजवा दिया जाएगा तो वो भी अपने पास नहीं रखेगा। इन्होंने सोचा कि अब हम यही करेंगे। इन्होंने जाकर के उनको बता दिया कि ये बेवकूफ लोग हैं, आप इनको भगा दीजिए, आपको इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। द जनरल प्रॉमिस्ड अमर, अब ये जनरल से बात हुई, ये किंग तक बात नहीं पहुंची है। अमर एंड हिज फ्रेंड ऑफ देयर सपोर्ट, उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो उनसे करेंगे तो उनसे लड़ाई के भी चांसेस बनते हैं ना। अगर उनके लोगों को वो रख लेंगे 20 लोगों को, तो फिर जाहिर सी बात है कुरैश को तकलीफ होगी, कुरैश हो सकता है लड़ाई लड़ ले। इनके दिमाग में उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। When they were admitted into the court, the general advised the king, "O king, hand them over to them." अब जैसे ही वो आते हैं तो जनरल पहले से तैयार थे। जनरल ने क्या कहा, अरे इन लोगों को आप हैंड ओवर कर दीजिए इनके। Regis became very angry. He refused to accept that. He said, a group of people have sought refuge in my land. They have chosen me over everyone else. अब उन्होंने कहा ऐसे तुम्हें हैंड ओवर कर दें? गुस्सा आया उस नाजश को, नजाशी को, ऐसे कैसे हैंड ओवर कर दें हम? एक लोगों का ग्रुप मेरे पास आया है और मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर दूं? क्यों? इन्होंने दुनिया को छोड़ करके मुझे पसंद किया है, पहले मैं इनसे सुन तो लूं। I will not judge them in their absence. उनकी गैर मौजूदगी में कोई फैसला नहीं करूंगा, अभी आने तो दो मेरे पास। I will call them in the first and give them the chance to see what they have to say about what these two men have accused them of. अब ये दो लोग जो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो let me check whether it is true or not. कहीं ऐसा तो नहीं है the allegation that they are posting is wrong. तो मैं चेक तो कर लूं इनका, क्योंकि वो इंसाफ पसंद था। इफ आई फाइंड दीज एलिगेशन ट्रू, अगर मुझे लगता है कि जो आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाए वो सच्चे हैं, आई विल हैंड देम ओवर टू यू, अदरवाइज दे विल सर्टेनली एंजॉय माई प्रोटेक्शन। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उनकी बात में सच है और आपकी बात गलत निकली, तो फिर वो यहीं रुकेंगे, उनको कोई लेकर नहीं जा सकता। द मुस्लिम कंसल्टेड विद ईच अदर एंड द किंग्स when the king's messenger delivered to them the order to appear in the court. अब इधर से बादशाह का रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आता है और वो कहता है कि ऐसे ऐसे बादशाह ने आपके पास कहवाया है कि आपको कोर्ट में पेश होना। They decided that they would answer every question put to them truthfully. अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि जो हो सो हो, अब हम वहां से जिंदगी बचा करके आए हैं, ऐसा नहीं झूठ बोलेंगे, जो हो सो हो, हम तो सच ही बोलेंगे। We will always be truthful. Whatever he asks, we'll tell him truthfully. अगर उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो सच बोलूंगा। They would state the whole truth as had been taught to them by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और वो सच कहां से सीखा था उन्होंने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें मालूम था कि अब हमारा सच जो है वो हमारी जान बचा लेगा इंशाअल्लाह। When they were admitted in the presence of the king, who was surrounded by the general, he asked to them, क्या हुआ? जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं, सारे जनरल चारों तरफ से घेरे हुए हैं और राजा बीच में बैठे हुए और सामने से ये लोग आ जाते हैं। What is this new religion over which you are in dispute, and your own people, which is also different from my own religion? तुम ये कौन सा नया धर्म लेकर के आए हो जो तुम्हारे लोगों के खिलाफ है, और तुम्हारे लोग वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जो मेरे धर्म के खिलाफ है? यानी ये कौन सा, यानी या तो तुम मेरे धर्म में आ जाते
या इनके धर्म में रहते, अभी तुमने तीसरा कोई नया रिलीजन अपना लिया, ये कैसी बात है, समझ में नहीं आ रही है। द मुस्लिम हैड चोजन जाफर इब्न अबी तालिब। अब किसको मुसलमानों ने चुना? उस ग्रुप में से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, लेकिन किसको चुना? जाफर इब्न अबी तालिब। यहां से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, जो हम में से बात को बहुत अच्छे से रख सकता है उसी को आगे करना चाहिए। हमेशा बात वही आदमी आगे करे, क्योंकि वो बात अगर करेगा तो बात अच्छे अंदाज में पहुंच सकती है। तो अब उसी से कहा गया कि आप बात रखिए। कौन थे वो? जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's cousin, as their spokesman. He said, until recently we were ignorant people. अब तक तो हम दौरे जहालत पे जिंदगी गुजारते थे, बिल्कुल जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारते। We worship idols, हम मूर्तियों की पूजा करते थे। We ate dead animal, मुर्दार को खा लिया करते थे, हम मरे हुए जानवरों को खा लिया करते थे। We commit all kinds of sin, हम सब तरह के गुनाह करते थे। We attached little value to keeping relationship with the relatives. हम अपने रिश्तेदारों से भी अपने रिश्ते नहीं रखते थे। We behave badly with our neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ में बुरा सलूक करते थे। This continued to be our situation until Allah sent us from among ourselves a messenger. ये सिलसिला चलता रहा यहां तक अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर मेहरबान हुई और अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल के जरिए से हमारी रहनुमाई करी और अल्लाह ताला ने एक रसूल को भेजा। दिस हिज गुड नेम, ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी वर वेल नोन टू अस। और ये वो आदमी था जो कितना सिंसियर था, कितना ऑनेस्ट था, और उसकी अच्छाई हम पहले से जानते थे। ऐसा नहीं था कि ये बुरे आदमी थे कोई। He called us to believe in Allah, और उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया। The one and the only God, एक और अकेला खुदा है। And ask us to stop idol worship, और हमसे उन्होंने मना किया कि तुम इन मूर्तियों की पूजा नहीं करो। He commanded us to speak the truth, उन्होंने हमसे कहा कि तुम सच बोलो। And to be honest, और ईमानदार रहो। To be good to your relatives and the neighbors, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करो। Not to shed blood, to keep away from sins, और गुनाहों के काम है इसलिए तुम कत्ल न करो, रॉबरी नहीं करो, चोरी नहीं करो, फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट वुमेन, औरतों के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम न लगाओ। He also commanded us to devote our worship to Allah and not to set partners in any sort with him. अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करो अकेली, और उसके साथ में किसी को शरीक न करो। We gave him a good response, हमने उनको एक अच्छी बेहतरीन रिस्पॉन्स दी, उनकी बात को माना। We believed in him, हमने उनका विश्वास किया। We gave him all full support, हमने उनको पूरी सपोर्ट दी अपनी जो दे सकते थे। We followed the command of Allah revealed to him, अल्लाह ताला उनके ऊपर जैसे ही कोई वही नाजिल करता, जैसे ही कोई कुरान की आयत या कोई हदीस आती, तो वो हम उनकी बात को मान लेते। We keep away from what he made unlawful for us, उन्होंने हमें बता दिया जो चीज हराम है हमने उसको छोड़ दिया, उसी वक्त से छोड़ दिया। People however assailed us, जबकि हमारे लोगों ने हमारे साथ में जुल्म और ज्यादती करी। They tortured us to return to the idol worship, लोगों ने हमसे कहा, हमारे ही लोगों ने, हमारी बिरादरी के, हमारे करीबी के कुरैश ने कहा कि तुम जाकर के मूर्ति पूजा करो। They wanted us to return to our past sinful life, वो चाहते थे कि हम उसी गुनाह भरी जिंदगी के अंदर लौट जाएं। We were oppressed, हम तो दबे कुचले थे। We were denied the freedom of the choose of faith, हमें इस बात की इजाजत नहीं दी जाती कि हम अपने धर्म को अपना लें। So we sought refuge in your country, इसलिए हम आपके मुल्क में आए हैं, आपके पास भागते हुए आए हैं। We hope that it is in your protection, we will not suffer injustice at all, तो हमें मालूम है कि आपके देश के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। Jafar to decide to him something about the Quran. Jafar recited the opening verse of the Surah Maryam, which speaks about the Prophet Zakaria and the Yahya, relates the beautiful story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the birth of Prophet Isa alayhi salam. अब ठीक है, नज्जाश ने कहा ठीक है तुम कुरान की कुछ आयतें तिलावत करके बताओ।
अब जैसे ही आया तो सूरह मरियम की आयत तिलावत करना शुरू कर दिए, जिसके अंदर ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाकया है। कभी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम समराइजिंग इट। तो वह जैसे ही उनकी तैयार करते हैं, फिर उसमें आगे जो है किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़े के तरीके से हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ये है कि उनके वालिद नहीं है, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उनको पैदा किया। फरिश्तों के जरिए से हजरत मरियम को खुशखबरी सुनाई गई कि आपको एक औलाद होने वाली है। हजरत मरियम घबरा गई कि मेरे तो शौहर नहीं है, मेरे कैसे औलाद हो सकती है। तो फौरन ही हुक्म आया कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। द नजश was so moved that he kept until his beard was wet with tears. His bishop also wept until the books were damp with the tears. अब इधर हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो कुरान की आयत तिलावत करते चले आ रहे हैं, और अब देखिए कि नजाशी जो है उसके आंसू जो है बहते चले आ रहे हैं, यहां तक कि उसकी बियर्ड, पूरी दाढ़ी जो है वो भीग जाती है। न सिर्फ वो, उसके जो बिशप थे, उसके जो पादरी थे, वो लोग भी रोते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी परेशानियों के साथ में उस दौर के अंदर सूरह मरियम में आप पढ़ेंगे तो उस दौर की परेशानियों के बारे में बताया गया। सब रोते हुए जो है उनकी दाढ़ियां भीग जाती हैं, और उनके बह बह करके उनकी जो किताबें हैं उनके ऊपर भी पानी आना शुरू हो जाता है, यानी आंसू आना। द नज्जाश said, this and what Jesus came with us must have come from the same source. तुम जो बात बता रहे हो और ईसा अलैहिस्सलाम जो बात लेकर के आए थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जगह से आई हुई बातें हैं। यानी बाइबल भी वहीं से आई हुई है और कुरान भी वहीं से आया हुआ है। He turned to the delegation of the Quraysh and said to him, "Go by Allah, I will never hand them over to you." अब फौरन ही नज्जाशी ने पलट करके उनके कुरैश के दो जो लोग आए थे, कौन कौन आए थे, अमर बिन अलास और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया, वो दोनों से उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा इन लोगों को, चाहे कुछ हो जाए। The next morning, Amr bin al-As went to the Najash with a wicked plan. अब इधर अगले दिन जो है फिर दोबारा से अमर बिन आस पहुंचते हैं, ओ किंग, अब एक पूरा प्लान इनके दिमाग में, ओ किंग, they say terrible things about Isa, the son of Maryam. You may wish to question them on what? अब क्या हुआ, उनके सामने प्लान आया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को तो खुदा का बेटा मानते नहीं है, तो हम चल करके इनसे बात करते हैं, हो सकता है इनको इस बात के ऊपर मारे, क्योंकि ईसाई जो है वो नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। लेकिन कुछ उसमें से समझदार लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं। इन्होंने जाकर के उनसे कहा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो खुदा, ये खुदा का बेटा नहीं मानते हैं उसको। तो कहते हैं अच्छा, वरना मुस्लिम, अब कह तो आप इनसे सवाल करिएगा। मुस्लिम रियलाइज द रीजन फॉर द सेकंड समन टू अटेंड द किंग्स कोर्ट, दे वर अलार्म्ड। अब क्या हुआ, उनको लग गया, मुसलमानों को उन्होंने कहा चलो बुलाओ। अब उन्होंने कहा दूसरी बार बुलाया जा रहा है कोर्ट में, यानी कोई ना कोई बात है। बट दे डिसाइडेड टू स्टिक ऑन द ट्रुथ एंड सिंपली स्टेट व्हाट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टॉट। उन्होंने कहा गया अब चाहे कुछ हो जाए, है तो परेशानी की बात, लेकिन हम सच का दामन नहीं छोड़ने वाले। Whatever the result, जो भी फैसला होने वाला है, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु again answered the king's question about the view of Isa alayhi salam without hesitation. जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु हक की बात को कहने के लिए खड़े हो गए बिना हेजिटेट करते हुए। Our view is that which is taught to us by Prophet sallallahu alaihi wasallam. हमारा वही व्यू है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ईसा अलैहि सलाम is Allah's servant and messenger. ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। He is his spirit, वो रूह अल्लाह है, अल्लाह की रूह के जरिए से वो पैदा हुए हैं, यानी अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। He is रूह अल्लाह। He is his word, वो उसका कलिमा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो उनके कलिमा के जरिए से पैदा हुए। Delivered to Virgin Mary, वो मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए और जिनका निकाह नहीं हुआ था। The Najash
picked up a straw, एक उसने तिनके को उठाया, lying on the floor and said, और उठा करके कहा, what you just said about Isa does not go beyond the truth by the size of the straw. जो तुमने बात बताई है उसमें और ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत में इस तिनके बराबर भी फर्क नहीं है, यानी मामूली सा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल वही बात है जो सच है, तुम सही बात कह रहे हो. He then said to the Muslims, you are safe in my land. अब दोबारा से कहा, तुम यहीं रहोगे, तुम यहां पर सेफ हो. Whoever harms you will be brought to justice. और जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी उसको इंसाफ मिल करके रहेगा. I will not harm anyone of you for a mountain of gold. सुभानअल्लाह. अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बारे में कहेगा और मुझसे कहेगा कि पूरा पहाड़ भी सोने का मैं तुम्हें दे दूं, तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसके बदले में भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. He then ordered his court to return the gifts of the Quraysh delegation. उन्होंने कहा जाओ कुरैश के जो तोहफे लेकर के आए थे वापस दे दिए. The immigrants of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's companion took place in the 5th year of the start of the Quran revelation. अब ये कौन सा साल है? कुरान के स्टार्ट होने के 5वें साल के अंदर इन लोगों ने कहां पर स्टे करना शुरू कर दिया? एबिसिनिया में, इथियोपिया में. The immigration of the Medina took place 8 years after the immigration to Abyssinia, with the last of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's companions who went to Abyssinia came back to join Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब ये immigration जो था 8 साल तक चलता रहा. 8 साल आफ्टर इमिग्रेशन टू एबिसिनिया धीरे धीरे करके सारे लोग जो थे वापस आने लगे, और 8 साल के बाद आखिरी सहाबी जो थे वो भी वापस आ गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर की जंग में उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया. When the battle was already over, this took place in the 7th year after the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम settlement in Medina. अब इसके बाद वक्त गुजरता चला. When the battle was over, जब बैटल खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया. अब this took place in the 7th year of the after the Prophet sallallahu alaihi wasallam's settlement in Medina. जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सेटल हो गए और अब 7 साल गुजर चुके हैं, तो यहां पर वो लोग जो हैं आकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन कर लें. दिस मीन्स जाफर इब्न अबी तालिब एंड सम ऑफ हिज कंपेनियन स्टे इन एबिसिनिया फॉर 15 ईयर, यानी 8 पहले के साल और 7 बाद के, यानी इसका मतलब जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके कुछ साथी 8 साल वो और 7 साल ये, तो पूरे कितने साल रहे वहां पे? 15 साल वहां पर रहे. द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूड देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द इस्लाम. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शुक्रगुजार हुए और उनसे कहा कि आपका वाकई में बहुत बड़ा इस्लाम के साथ में, इस्लाम को बेहतर करने में आपने बहुत ज्यादा साथ दिया. He considered that their stay in Abyssinia was a part of their work to establish Islam as a divine message for all the mankind. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग जो एबिसिनिया में रुके हुए थे, इथियोपिया में रुके हुए थे, ये आपने बहुत बड़ा काम किया कि इस्लाम का पैगाम दुनिया के सारे लोगों तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ा रोल है आप लोगों ने जो अदा किया. सुभान अल्लाह. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड द फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, इंशाल्लाह. The Quraysh approached dash to make Prophet sallallahu alaihi wasallam change his mind. किसके पास गए थे? अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु. अबू तालिब के पास हो गए थे. रज़ियल्लाहु अन्हु किसके लिए कहते हैं? जिसके इस्लाम के ऊपर मौत हुई और वो सहाबी थे. अबू तालिब क्योंकि सहाबी नहीं थे तो मेरी जुबान से स्लिप हो गया, तो अबू तालिब के पास पहुंचते हैं. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that what he would not give the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he would not give up calling to Allah even if they put the dash in the right hand and dash in the left hand. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अल्लाह का पैगाम नहीं छोड़ूंगा चाहे वो मेरे सीधे हाथ में क्या चीज रख दें? सूरज रख दें, और उल्टे हाथ में क्या रख दें? चांद रख दें. Okay, the Prophet's companion left Medina and went to, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने मदीना छोड़ दिया और कहां चले गए? एबिसिनिया, इथियोपिया. एबिसिनिया वाज रूल्ड बाय, एबिसिनिया में कौन रूलर था? क्रिश्चियन किंग जिसका नाम था नज्जाश. क्रिश्चियन किंग द नजश. एबिसिनिया
इज प्रेजेंट डे, आज की डेट में अबिसिनिया को क्या कहा जाता है? इथोपिया। इथोपिया की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। ओके, अ टोटल ऑफ डैश पीपल माइग्रेटेड टू एबिसिनिया। एबिसिनिया कितने लोग गए थे? 20 लोग गए थे, 16 मर्द और 4 औरतें। डैश एंड डैश वर चोजन टू स्पीक टू नजश अगेंस्ट मुस्लिम। मुसलमानों के खिलाफ 2 लोग बोले थे, कौन? अमर बिन अल-आस एंड कौन थे, मुझे अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया, ये 2 लोग बोले थे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर को आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। Whom did the Quraysh approach to make Prophet sallallahu alaihi wasallam change his mind? किनके पास पहुंचे थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंड बदलने के लिए कुरैश? किनके पास पहुंचे थे? अबू तालिब। तो आप लिखिए आंसर, कुरैश अप्रोच्ड अबू तालिब to make Prophet sallallahu alaihi wasallam change his mind. Simple. Why were the enemies of the Prophet sallallahu alaihi wasallam reluctant to attack him? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनके दुश्मन अटैक क्यों नहीं करते थे? Because, आप लिख लीजिए, because he was nephew of Abu Talib. Full stop. Abu Talib was the chief of Banu Hashim. Right? Abu Talib was chief of Banu Hashim. Right? So the Quraysh were reluctant to attack Prophet sallallahu alaihi wasallam in the presence of Abu Talib. Right? So the Quraysh were reluctant to attack Prophet sallallahu alaihi wasallam in the presence of Abu Talib. How did Quraysh react violently towards Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers? किस तरीके से कुरैश ने वायलेंटली रिएक्ट किया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के ऊपर? किस तरीके से किया था बताइए। कम टू पेज नंबर 60। ओके, 60 पर देखिए, यहां पर है, कुरैश रिएक्टेड वायलेंटली. They tried to stop Prophet sallallahu alaihi wasallam from entering the Kaaba. They set their loud to raise a hue and cry against him. They called Muslims bad names. They made their movement impossible. They did not allow them to meet from people from outside the Makkah. They began to persecute poor and the weak more intensely. Right? यहां से आप यहां तक पूरा ऐसे ही लिखेंगे, यानी ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन छोड़ करके फिफ्थ लाइन में से नाउ से स्टार्ट करके नाउ हटा देंगे, बस खाली द कुरैश रिएक्टेड से लेकर के लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन में यहां से देखिए आप. ओके, प्लीज लुक इट केयरफुली. यहां से है, देखिए नाउ है, नाउदा से लेकर के, अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस पेज नंबर इस पेज पर देख लीजिए, बस खाली पेज आया ना, बस पेज का ध्यान रखिए, पेज नंबर 60 पर. ठीक है, यहां से नाउ से स्टार्ट करके आपने यहां तक आना है पूरा, बस यहां तक. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल हिज कंपेनियन टू लीव फॉर अबिसिनिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों लोगों से कहा कि आप अबिसिनिया चले? बिकॉज द लाइफ बिकम टेरेबल. इट वॉज डिफिकल्ट टू लिव इन मक्का. देख लीजिए, बिकॉज द लाइफ इन मक्का वॉज बिकमिंग टेरेबल. इट वॉज डिफिकल्ट टू लिव इन मक्का. वॉट काइंड ऑफ अ किंग वॉज नजश? नजश किस तरीके का रूलर था? नजश के बारे में क्या बताया, बताइए, जल्दी बताइए. नजश वॉज अ जस्ट ruler, right? Najash was a just ruler. Okay. Whom did the Prophet sallallahu alaihi wasallam companion choose to be their spokesperson? किसको चुना था spokesperson के लिए? मैंने बताया था आपको, जाफर इब्ने अबू तालिब. इब्ने अबी तालिब. Okay. What comparison did the Najash make to show that his views on Isa alayhi salam were the same as those of the Muslims? फिर बताइए, नजश ने क्या कंपैरिजन यूज किया था, क्या चीज का बताया था
कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तुमने बताया है और हमारे बारे में है उसमें कितना फर्क है, बताइए। अब आप पेज नंबर 64 पर आइए। हाँ ठीक है, यहां पर आइए, देखिए पेज नंबर 64 पर। कहां से? वट यू सेड, ठीक है नहीं, वट यू हैव जस्ट सेड अबाउट ईसा डज नॉट गो बियॉन्ड द ट्रुथ बाय द साइज ऑफ दिस स्ट्रॉ। बस इतना सा, तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है जो तुमने कहा सच में, राइट? इतना सा लिखना आपको। व्हाट कंपैरिजन डिड नाजश शो, हो गया, राइट? नाउ कमिंग अप टू थिंक अप, व्हाई डू यू थिंक अबू तालिब डिसएग्रीड टू हेल्प प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट देन एग्रीड लेटर? बताइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अबू तालिब मना करने गए थे, बाद में अबू तालिब राजी हो गए कि हम आपकी मदद करेंगे। क्यों ऐसा हुआ था? जब शुरू में गए थे तो ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय कुरैश की बातों से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, कुरैश की बात गलत है और मैं बनु हाशिम का सरदार हूं, मेरी प्रेजेंस में इतना ईमानदार इंसान जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके ऊपर अगर कोई जुल्म करेगा तो मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और उनको कहीं एहसास था कि मेरा बेटा जो है, मेरा भतीजा जो है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो कोई झूठा धर्म प्रोपोगेट नहीं करेगा। वो नहीं मानते थे, उनकी मजबूरी थी, मजबूरी में नहीं करते थे, लेकिन उन्हें बात यकीन थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रिलीजन पर है वो सच्चा है, राइट? नाउ दिस इज द वंडरफुल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. What we have to do, you have to complete these question answers, you have to learn these question answer, you have to what you have to do, you have to memorize everything. आपको सारी चीजों को अपने दिमाग में फिट करना है, किस तरीके से मुसलमान अबिसिनिया गए, क्यों गए, वहां के नजाशी ने क्या किया उनके साथ में, वहां पर जाफर रजी अल्लाह ने किस तरीके से ड्रेस किया, वहां पर जो अमर बिन आस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया ये लोग पहुंच रहे हैं, वो क्या करते हैं, कितने लोग वहां पे माइग्रेट करके गए थे, ये सारी चीजें हमेशा हमें याद रखना चाहिए। नजाशी ने क्या कहा था, कौन कौन सी आयतें तिलावत की थी, ये सारी चीजें हमें अगर जहन में रहती हैं तो हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, और हमसे कोई हमारे इस्लाम के बारे में कभी भी पूछे तो हम बता सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्लाम को सही मायने में समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जब तक इस दुनिया में रहें, इस्लाम के ऊपर रहें, ईमान के ऊपर रहें, मौत आए तो इस्लाम पर आए, ईमान पर आए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।